friends, this is Sonali Gupta. I am Assistant Professor at Biani Group of Colleges, and today I am welcoming you all to discuss a topic cell cycle and cell division on the basis of GuruKPU.com. So first of all, what is cell cycle and what is cell division? Cell cycle is the process in which a cell prepare itself for undergo in cell division. तो यानी सेल साइकिल वो प्रोसेस है जिसके तहत सेल जो होती है अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन में जाने के लिए, क्योंकि हर सेल का फ्यूचर डिसाइड होता है और एक सेल को डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनानी होती है. तो अगर उसको डिवाइड होना है तो इस प्रोसेस में जाने के लिए सबसे पहले उसको खुद को प्रिपेयर करना होगा, जिसके लिए वो जिस प्रोसेस में जाएगी उसको कहते हैं सेल साइकिल. तो सेल साइकिल जो होती है वो दो फेजेस में मिलकर कंप्लीट होती है. अगर हम सेल साइकिल की बात करेंगे तो ये दो फेजेस में मिलकर पूरी होगी. फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकंड इज एम फेज. अर्लियरली ये माना जाता था कि जो इंटरफेज है वो रेस्टिंग फेज है, इसमें जो सेल होती है वो रेस्ट करती है, और एम फेज जो है वो मोस्ट एक्टिव फेज होती है. बट ऐसा नहीं है. इंटरफेज जो है दिस इज द मोस्ट एक्टिव फेज. मोस्ट एक्टिव फेज होती है. ये मोस्ट एक्टिव फेज क्यों होती है? बिकॉज इन इंटरफेज अ सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अंडरगो इनटू एम फेज. एम फेज इज द डिवीजन फेज. मोस्ट एक्टिव फेज, अगर हम इस फेज की बात करें तो ये तीन फेजेस से मिलकर के बनी है, G1, S and G2 phase. Here G1 is for gap 1 phase, S for synthetic phase and G2 is gap 2 phase. And M phase 2 phases से मिलकर बनी है, karyokinesis and cytokinesis. What is karyokinesis? Karyokinesis contains 4 phases. अगर हम बात करें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ये वो फेज है जिसके अंदर सेल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिससे कि वो डिवीजन में जाने के लिए प्रिपेयर होती है. एंड साइटोकाइनेसिस, अगर हम कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन. सो कैरियोकाइनेसिस इज द फेज इन विच न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस एंड साइटोकाइनेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच one cell divided into 2 cells. So here a parent cell is divided into 2 daughter cell, daughter 1 and daughter 2 cells. So this is the complete cell cycle and cell division which we are talking about. We will talk about interphase. Interphase, अगर मैं एक सेल साइकिल बनाती हूँ तो उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि एम फेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें एम फेज ओनली, दिस इज द एम फेज एंड ऑल रेस्टिंग फेज इज इंटरफेज. दिस कंप्लीट इज इंटरफेज. दिस इज G1, दिस इज S and this is G2 phase. If I am talking about a cell, here a cell will go into this G1 firstly, because here in M phase it has to divide. So before dividing it has to be prepared for the division. So first of all a cell enters into G1 phase. What is G1? G1 is gap 1 phase, and this complete process starting from here till now it is interphase or preparative phase. We can call this as preparative phase also. So in G1 phase, what changes would be going here? In G1 phase, firstly all enzymes. Enzymes. What enzymes? In S phase, DNA replication will be going to take place. So before DNA replication, all enzymes we are required in DNA replication will be synthesized in G1 phase. So all enzymes, these all enzymes are protein. Which protein or enzymes? Topoisomerase, SSBP, all these proteins will be synthesized here, polymerases also. So if protein synthesis is take place here, so we can call that translation and transcription will be going to happen here. So translation and transcription is the process from which we get protein, and for this protein synthesis we also need RNA.
So all type of RNA synthesis will be increased here, and because this is a very energetic process, इसमें जो है हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो साथ में ATP भी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ATP सिंथेसिस भी इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। एंड साथ ही रॉ मटेरियल जो कि DNA रेप्लिकेशन के लिए चाहिए रहेगा, फोर्थ पॉइंट इज रॉ मटेरियल। व्हाट रॉ मटेरियल? फर्स्ट रॉ मटेरियल इज पेंटोज शुगर, सेकेंड रॉ मटेरियल नाइट्रोजिनस बेस, and third is phosphoric acid. All this will be synthesized in G1 phase. So अगर ये सारे के सारे इस सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं G1 फेज के अंदर, तो इस सेल का जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सो साइज ऑफ द सेल विल बी इंक्रीज्ड एंड साइज ऑफ द सेल विल बी इंक्रीज। तो दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फेज। इस फेज को हम बोलेंगे ग्रोथ फेज। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ G1 फेज, सेल अंडरगो इनटू, दिस सेल विल बी अंडरगो इनटू S फेज होती है। इस फेज के अंदर क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज DNA रेप्लिकेशन। इस फेज के अंदर DNA रेप्लिकेशन होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। DNA रेप्लिकेशन क्यों होता है? क्योंकि जब दो डॉटर सेल बनेगी तो दोनों डॉटर सेल के अंदर जब तक यहां पर वो सेल जब आएगी तो वो डिप्लॉयड होगी। जब इन प्रोसेस में जाएगी और न्यूक्लियोसोम डिवाइड होगा तो दोनों जो डॉटर सेल बनेगी उसमें DNA की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, इसलिए DNA रेप्लिकेशन जरूरी होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। DNA रेप्लिकेशन। सेकंड इज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो कि ऑक्टामर फॉर्म बनाता है और DNA जो होता है इसके ऊपर रैप रहता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन भी DNA रेप्लिकेशन के साथ साथ सिंथेटिक फेज के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, ना कि G1 फेज में। बट G1 फेज में एक और एंजाइम सिंथेसाइज होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम फर्स्ट प्रोटीन होता है जो कि DNA रेप्लिकेशन में वर्क करता है, DNA को अनरैप करने का काम करता है। इस प्रोसेस के अंदर भी ATP रिक्वायर्ड होती है, इसलिए यहाँ पर भी ATP सिंथेटिक बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही सिंथेटिक फेज में सेंट्रियोल भी डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे सेंट्रियोल डिवीजन विल बी टेक प्लेस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल। दिस सेंट्रियोल डिवीजन, जिससे कि आगे जाके स्पिंडल फाइबर अराइज होने वाले हैं, स्पिंडल फाइबर अराइज होने वाला है। ये अगर मैं बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एनिमल सेल, नॉट प्लांट सेल। ये प्रोसेस प्लांट सेल के अंदर नहीं है, ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर है। सो दिस प्रोसेस इन विच सेंट्रियोल इज डिवाइडिंग इज गोइंग टू ओनली इन एनिमल सेल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट G2 phase. As we know, सिंथेटिक फेज के जस्ट बाद में सेल एंटर करेगी। ये सेल यहाँ G2 फेज में एंटर करेगी। G2 फेज में अगेन क्योंकि इसको डिवीजन फेज में जाना है, तो ये अपने आप को वापस से उस डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने का काम करेगी। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटिव फेज। यहाँ पर एक यहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और इसमें जो मेन प्रोटीन बनेगी वो बनेगी ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या काम करेगी? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करेगी, जो कि दोनों सेंट्रियोल से अराइज होते हैं। तो ये काम करती है सेंट्रियोल के ऊपर, जिससे कि स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। एज प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस हेयर, सो ऑल टाइप ऑफ RNA सिंथेसिस विल बी इंक्रीज हियर। tRNA, mRNA और rRNA सिंथेसिस विल बी इंक्रीज ओवर हियर। The next point is ATP. ATP synthesis will be increased here. So these are the process which we are talking about interphase. So interphase is not resting phase. It is the most active phase, because in this phase a cell going to prepare itself undergo into AM phase, and the AM phase is the division phase. अगर मैं AM phase की बात करूँगी तो AM phase के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस, या जिसको मैं कह दूं फिर आगे साइटोकाइनेसिस, ये सारी की सारी प्रोसेस जो होगी यहाँ पर काम करेगी। तो यहाँ से ये सेल फुल्ली प्रिपेयर है। अब इस सेल में हमें जो एंजाइम चाहिए थे वो एंजाइम प्रिपेयर है,
जो ग्रोथ फैक्टर हमें चाहिए थे, जो स्पिंडल फाइबर वाले प्रोटीन हमें चाहिए थे, सारे के सारे इसके अंदर प्रिपेयर है. सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल in which a cell prepare itself for undergo into mitotic or meiotic division. It is called interphase, and this is the first stage of cell cycle. Thank you for watching. Please like, comment and share our YouTube channel. Thank you.